Hello everyone, welcome to my channel Fun with Vishnas and I am Nazika and today we are at Social Affair Cafe Erudi and we are at a segment Art on the Dining Table with my friend Vaibhav and today we are going to talk about a lot of stuffs and music. So hello Vaibhav, hi, hi, how are you? Pretty well. Okay, so let's start. So okay, let's start. First tell our audience about मतलब म्यूजिक में क्या किया है and all. So what are your current qualifications and achievements in music? Basically, मैं फिलहाल विशारद तबला तबला है the subject. Next, beside music, I am either working as an advertiser and marketer. I'm a student currently. Next, and also I've been working in many recording studios as well as live shows as an accompanist. And I have performed many times at Akhil Bhartiya Gandharva Mudra as a solo. That's it. Yeah. So yeah, he is Akhil Bhartiya Vishara student as it's told. So start करने से पहले first of all I like to ask you कि how did you get inspired? मतलब कहाँ से मिली ये inspiration and why did you purposely chose tabla as an instrument? So it all started from childhood. मतलब like my mom and dad, they are very fond of music. मतलब हमारे घर पे पहले ऐसा एक इतना बड़ा साइज का रेडियो हुआ करता था. So पूरे दिन वही चालू रहता था. Because we never had a television. So Yeah. dad was very fond of music. I think वो मतलब that time was quite radio or just yes. Next, and we had an uncle at our society who used to host orchestra shows named as Golden Hits. तो हमें वहाँ पे टिकट्स मिलते थे हम जा जाके. तो एक बार इंटरेक्शन ऐसा हुआ कि there was a segment where जुगलबंदी was going on between drums and tabla, and that time moment I clicked, yeah, कि सीखना है, खुद तो इंस्ट्रूमेंट सीखना है. तो basically first I was obsessed with drums, but my sister is a classical dancer. That's why mom. I think you told me कि वो भरतनाट्यम करती है correctly ऐसा है ना. She is in भरतनाट्यम. अरे वाह. Next, so मम्मी को एक आइडिया थी कि हाँ इस इंस्टीट्यूट में ये भी सिखा देता है. So she was like teaching any Western instrument. Let's go with our culture. Oh, that's nice. तो अभी जैसे हम लोग तबला की बात कर रहे हैं तो मतलब हम लोग स्टार्ट करते फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ तबला. तो तबला कैसे मतलब कैसे इवॉल्व हुआ एंड व्हाट ऑल. सो लेट अस टेल अबाउट. Okay, so basically there are many views with the origin of tabla. Because कुछ ऐसा कहते हैं कि दो पखवाजवादकों की जुगलबंदी हुई थी और एक इसमें हार गए तो उसके कारण उन्होंने अपना पखवाज ब्रेक डाउन कर दिया. फिर भी उसका वजन लगा तो उसे तब भी बोला. यहाँ से शुरुआत हुई. ओके. नेक्स्ट, कई लोग बोलते कि पर्शियन जब आए थे हमारे यहाँ पे तो वहाँ से वो तबला लेके आए थे. नेक्स्ट, और एक व्यू ऐसा है कि ठुमरी जो लोगों को पता होगा कि गायन प्रकार उसके लिए पखवाज was not sufficient because पखवाज has a very loud notes and ठुमरी needs an melodic sound like नजाकत वाला sound. इसके लिए तबला इस इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन हुआ. अरे वाह. सो यप. So now tell me something about जैसे तबला मतलब अभी हम लोग ने गायन की बात की तो इन माय प्रीवियस पॉडकास्ट हम लोग ने बात की कि कैसे गायन वादन में ठुमरी दादरा नाट्य संगीत ऐसी तरह तरह की बंदिशें होती है. सो व्हाट आर द टाइप्स तबला हैज इन सच प्लेस मतलब तोड़े आई गेस उसे बोलते हैं तो डिफरेंट टाइप के तोड़े. तो कैसे तोड़े एक ऐसा प्रकार है जो मोस्टली कथक में ज्यादा यूज करता है मतलब तबला और कथक साथ करते टाइम. नेक्स्ट देयर आर लाइक कायदा चक्रधार रेला पेशकार these kind of from विलंबित लय to ध्रुव लय. ओके. एंड इफ यू कुड डिस्क्राइब मतलब थोड़ा सा कि कायदा क्या होता है चक्रधर क्या होता है. Basically we start with विलंबित लय means the slowest tempo. The first there are peshkars means you have to play around with laykari. The hard lay, guard lay, basically whoever knows what are these terms. Next, the madhya lay where kaida is like a rule book. Means you have given us set of goals, you have to play around that goals and you have to like da da ti da 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 ti da da ti. You have to play around these notations. Okay. And you have to मतलब उसमें variations लेना होता है. Yeah. So you have to show your creativity. Next, realize famous for the fastest speed, like quickness.
and how, if you can just prompt it for us. Like this is the first line. Ah, It goes on like this. oh, that's Everything ends with the TI. yeah. And मतलब आई थिंक चक्रधर तिहाई इज समथिंग जो कथक में बहुत ज्यादा मैंने सुना है। तो ऐसा मतलब चक्रधर तिहाई के बारे में हम बात करेंगे, बट वी टॉक अबाउट कायदा एंड रेला। रेला। सो वो किस में यूज होता है ज्यादा और कब यूज होता है? मोस्टली ये टर्म सोलो के लिए ज्यादा यूज होते हैं। व्हेन ओके एज अ प्लेयर क्या हुआ, आपका स्किल सेट कितना डेवलप है, वो शो करने के लिए कायदा और रेला। ओके Like या Qaeda is determined for a specific, like theater, Tirakita, like Ah. Sound of Chati. They're dedicated to specific goals. And अच्छा Rela is for how speedily you can play. ओके एंड चक्रधर तिहाई दैट इज लाइक मतलब मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी, मराठी मूवी स्कूल की, एंड वहाँ पे उसका बहुत जिक्र हुआ है। Yeah. तो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग? These are sets of means developed by our ancestors. एक स्पेसिफिक थीम के साथ हो जाते हैं। लाइक whoever knows उसका जाकिर हुसैन जी, हाँ his famous thing is Hiran Paran. So it describes how a hiran hops from the hunter and escapes from the ओके hunter. मतलब अगर हिरन को भागना होगा तो वो It's कैसे? like how he हाँ bounces and how he runs from the hunter. एंड दैट ही हैज इनकॉर्पोरेटेड इन म्यूजिक। ओके दैट्स Anyone रियली did know. दैट्स रियली अमेजिंग। तो इसके बाद मैंने ऐसे सुना है कि मतलब पहले हम लोग को बताओ कि तबला के जो घराना होते हैं, जैसे गायन में अलग अलग घराने होते हैं, वैसे तबला के घराना होते हैं? जी, तबला में मुख्यतः 6 घराने थे, like दिल्ली, अजराड़ा, लखनऊ, बनारस, फर्रुखाबाद and Punjab. But the prominent one means from where the tabla started was Delhi and Lucknow. Then their child gharanas came on from Ajarada was developed from Delhi gharana. Okay. Like Delhi specialty is playing with 2 fingers. ओह जो भी बोल रहे थे 2 उंगली के बोल रहे थे। और अजराड़ा ने भी सेम चीजें टेक ओवर की, पर उन्होंने अपना वेरिएशन, जिससे खाली बरी का डिफरेंस करता है। हाँ मोस्ट ऑफ द घराने में खाली और बरी सेम रहते थे। बोल्स एक में बेस बोल्स देखते हैं, फ्लैट बोल्स देखते हैं। पर अजराड़ा का स्पेशलिटी ये है कि जहाँ पे खाली चेंज होती है, लाइक इट डजंट रेप्लिकेट द समवन। ओके आई एम काइंड ऑफ गेटिंग yeah confusing to hear you. I'm just trying to get my hand on that. And मतलब I just want to know कि पखवाज हो गया, मृदंगम हो गया, and I think मृत्ति का मतलब मिट्टी से कोई तो इंस्ट्रूमेंट बना था। मृदंगम come after that I guess. हाँ तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? और मतलब अगर जैसे कि अभी मुझे ये करना होगा कि हम लोग ने एक स्पेसिफिक टाइप का हो गया, जैसे भजन में मोस्टली पखवाज यूज होता है, तो व्हाई इज दैट वेरिएशन? ऐसा होता क्यों है? बेसिकली नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब कैसे है, पखवाज जैसा स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे भजन में हम लोग को एक फील लगता है कि लाइक बेस इज हैवी, लाइक एनर्जी energy. बूस्ट, करंट एनर्जी बूस्ट। Exactly. ओके तबला है मोस्टली जहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर्स रहते हैं वहाँ पे यूज करते हैं, या फिर लाइक चंचल टाइप थोड़े से रहते हैं मेलोडी। अच्छा तो वो थिंक कि मतलब अभी देखो साउथ इंडिया में मोस्टली मृदंगम यूज होता है एंड नॉर्थ इंडिया में मोस्टली तबला यूज होता है, तो ऐसा कुछ जियोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा है वो इंस्ट्रूमेंट पे जिसकी वजह से हो रहा है? नॉट लाइक इट्स बेसिकली कल्चर एंड ट्रेडिशंस, वहाँ पे कैसे चलता है, यहाँ पे क्या है। लाइक जब सिखाए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट तो वहाँ के लैंग्वेजेस अलग रहती है, नोटेशंस का पैटर्न अलग रहता है। करेक्ट लाइक भरतनाट्यम और से साउथ इंडियन के जहाँ पे म्यूजिक है वहाँ पर लाइकरी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, लाइक फ्रॉम 3x3 पैटर्न्स, 3x4 पैटर्न्स। राइट यहाँ पे तबला में मोटा वेरिएशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, खास है। करेक्ट एंड मतलब अगर हम लोग डांस फॉर्म्स की बात करें तो कथक के साथ तबला को बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है, या फिर हम लोग अगर हारमोनियम की बात करें तो उसके साथ तबला को बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है। तो ऐसे और कौन से डांस फॉर्म से, बिकॉज आई बिलीव दैट लाइक एवरी डांस फॉर्म हैज इट्स ओन सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, सो आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब एक पर्टिकुलर जियोग्राफी में वो म्यूजिक कैसे एक साथ आता है? बेसिकली वही जो पहले वन के कल्चर पर डिपेंड करते हैं, राइट। तो मराठी कल्चर तबला या मराठी या पंजाब का कल्चर डिपेंड करता है तबला, क्योंकि पंजाब इज वेरी वास्ट इन टर्म्स ऑफ तबला। ढोल एंड ऑल या
और मतलब ढोल आई थिंक इट्स यूज्ड फॉर काफी मतलब ऐसे लोक संगीत के लिए उसको यूज या किया जाता संगीत है है। पॉप म्यूजिक। नाउ दिस गॉट मी टू अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी महाराष्ट्र में जैसे कि ढोल ताशा सांबर these are like you know quite a famous instrument जब लोक संगीत की बात होती है एंड उसको हम लोग तब मतलब जब हम लोग क्लासिकल म्यूजिक में तबला प्ले करते हैं तो we try to incorporate those sounds into that. So what are the like you know difficulties classical player gets when he goes into that? Basically, when we start to learn, we are trained according to the pattern which is going on. हाँ Like पहले ये होगा, फिर ये होगा. उसके बाद inculcate करना comes your sound sense कि आप कैसे उसको अपने इसमें ढाल सकते हो. Like अगर ढोल का पैटर्न है तो आप कैसे उसको तबला में प्ले करके दिखा सकते हो. और तबला वन ऑफ द फास्टेस्ट इवॉल्व इंस्ट्रूमेंट है कि आप काइंड ऑफ सारे जो स्किन इंस्ट्रूमेंट्स है वो आप इसमें बजा सकते हो. ओके वन ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ तबला. और मतलब अगर मैं अभी कल को उठ के ऐसे ढोल और ताशा दे दूं सो लाइक आई दिस इज जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन वुड यू लाइक टू प्ले इट एंड हाउ मच यू थिंक यू कैन प्ले दैट Yeah, I इंस्ट्रूमेंट am fond of the ढोल ताशा pattern. I can Oh, follow a lot. nice. So maybe someday we can try out. Yeah, sure. And then comes the another thing is like you know uh, तबला और बेसिकली मतलब ये मृदंगम और तबला हम दोनों को क्योंकि दोनों बहुत प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है एक कर्नाटकी संगीत में बहुत प्रोमिनेंट है एक नॉर्थ इंडियन म्यूजिक में बहुत प्रोमिनेंट है अगर कोई प्लेयर मृदंगम बजा रहा है और कोई प्लेयर तबला बजा रहा है तो डू यू थिंक कि उनकी पर्सनालिटी में उसके हिसाब से डिफरेंस आएगा? Depends on the player again. कि वो कैसे कॉपरेट करता है सामने वाले प्लेयर के साथ. ओके बिकॉज जब दोनों इंस्ट्रूमेंट सिखा जाते हैं नॉलेज दोनों का मिलता है कि नॉर्थ इंडियन में कैसा है साउथ इंडियन में कैसा है तो एक समर कनेक्शन तो हमें पता रहता है कि क्या करना है. अच्छा cause see then for the instruments मतलब जैसे हारमोनियम हो गया या फिर गायन हो गया तो दोनों को पूरा वो कम्प्लीटली डिफरेंट पैटर्न में चला जाता है अगर आप कर्नाटकी संगीत में जाते हो तो क्या तबला में भी मतलब रिदम में भी ऐसे ही होता है कि वो पूरा मतलब एक अलग पैटर्न बन जाता है एंड इफ यू कैन जस्ट गिव एग्जांपल अगर कुछ है तो? जी जैसे तबला में दे देता हूँ कि तीन ताल और अद्धा तीन ताल दोनों सेम है 16 बीट्स है पर बजाने का पैटर्न अलग है. तीन ताल गोज सिंपल 1 by 1 बट अद्धा ताल गोज लाइक अ पैटर्न दा देन दा 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 देन दा दा देन दा 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 देन दा. It is 4 by 4 pattern. Yeah. Like da din din da da din din Correct, da correct. din din da da din din. Like that's a difference आता है. It's depend upon the accompanist कि आप किस कैसे तरीके से accompany करना चाहते हो सामने वाले म्यूजिक फॉर्म को. Okay. So now I want to know कि as a tabla player, how do you think playing or overall being in a music has impacted? मतलब तुम्हारी लाइफ पे उसका क्या इम्पैक्ट हो गया है हुआ है इन शॉर्ट ओवरऑल म्यूजिक में अभी इतने साल से प्रैक्टिस करके ऐसे बहुत ज़्यादा लाइक 360 डिग्री पूरा मेरा लाइक फर्स्टली आई वाज वेरी इंट्रोवर्टेड मतलब अगर कोई जान पहचान वाला भी आता मेरे सामने तो 10 बार सोचे उससे बात कर दिया ना तो आई कैन टॉक टू एनी रैंडम पर्सन. Yeah, I can see that. Yeah. And basically the most important thing is my guru श्री विश्वास यादव सर. उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है लाइक seeing him how he stays with people, how he plays, how he lives as a personality. It's impacted a lot on me. Nice. अभी गुरु की बात हुई तो मतलब ऐसे होता है कि हर एक ग्रुप का अपना अपना स्टाइल होता है राइट एंड मतलब एक सिखाने का मतलब पूरा ये होता है पैटर्न सो व्हाट आर द डिसिप्लिन्स यू फॉलोड व्हाइल लर्निंग ऑल दिस थिंग्स हाउ वाज योर रियाज एंड एवरीथिंग? Like in the starting, I was kind of notorious in terms of years कि मुझे बहुत जल्दी सीखना है बहुत ऐसा था मेरा मुझे जल्दी सीखना है तो वो एक डिसिप्लिन आया मेरे में कि पेशेंस कैसे डेवलप होना चाहिए तो आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ तो मुझे जल्दी क्यों नहीं आ रहा है ये मुझे. No, you know, I play harmonium as well and my brother also plays and मतलब मेरा ऐसे मैं बहुत ऐसे विलंबित में संतुलन में जाती हूँ and he is like very fast person. Even though we learn from the same teacher, it's I think the personality as well defines. So ऐसा मतलब we will like to listen something from you that is you know reflecting your personality in your pattern.
So I just want my audience to know that he has shared that clip with me, and we are going to watch that now. So please, guys, you watch, continue till then. We'll come back after a 5 minute break. नमस्कार, माझं नाव वैभव कदम. आज मी आपल्यासमोर ताल तीन ताल पेश करण्याचा प्रयत्न करतो. लहरा संगत करतायत वैदेहीताई. आज्ञा.
guys, welcome back and let's start with our next segment. Okay. तो नेक्स्ट सेगमेंट में जाने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू कि मतलब अगर तबला इफ यू वुड नॉट हैव चूज एज एन इंस्ट्रूमेंट तो और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यू वुड हैव लाइक टू प्ले? Mostly drums or keys. I'm very fond of keys, to be honest. बहुत ऐसा peaceful instrument लगता है वहाँ पे, और it takes a lot of patience and technical things to play a keyboard. The drums, obviously, a boy's mentality. Yeah. And like this comes to a very interesting question कि अगर ड्रम्स में जो पैटर्न बजता है वो पैटर्न क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ बजाया जाए एंड तबला को अगर हम लोग ड्रम्स की जगह पुट करें इन वेस्टर्न थिंग्स तो हाउ वुड इट साउंड? ये थोड़े टाइम पहले अगर क्वेश्चन रहता तो बहुत डिफरेंट आंसर था, पर आज के टाइम पे फ्यूजन म्यूजिक एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जहाँ पे स्विचेस होते हैं लाइक ड्रम्स। अगर आपको बताओ कि जैज म्यूजिक एक जॉनर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल बनना होता है ड्रम्स एज अ ड्रमर, कि आप ज़्यादा फ्रीली नहीं बजा सकते, आपको विद टाइम स्टैम्प रहना पड़ता है बहुत ज़्यादा। यू हैव टू कैलकुलेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। From the calculation part, again, you know, as a tabla player, I believe that there are a lot of calculations going on in the inside out. So, do you think it has made you somehow a calculating person or has enhanced your analytical skill? Yeah, a lot. Because अगर हम कोई कंपनी स्टार्ट करें तो हमें वहाँ पे राइट्स नहीं थे कि हमारे हिसाब से कुछ करें। आप वी हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द पर्सन विद परफॉर्मिंग अ सोल। जो भी सिंगर रहता है उसके हिसाब से आता है, वहाँ पर आपको आपका पूरा क्रिएटिविटी शो करना रहता है। सेम लाइफ में मैं वही करता हूँ अभी कि छोटा सा पार्ट मिला है तो भी उसे मैक्सिमम आपको कैसे डिस्प्ले कर सकते हो आप। नाइस एंड सो ओवरऑल लाइक overall social impact or personal impact you have been like you know it's on you जब से म्यूजिक स्टार्ट किया है म्यूजिक के साथ you are being there how do you think it has impacted your social life your personal life mental health overall as well? बेसिकली कॉन्फिडेंस बूस्ट लाइक into 300 टाइम्स हुआ है मेरा आज के दिन पे। मैंने अपना टैलेंट शोकेस करना ही आई गेस फर्स्ट ईयर से चालू किया, लाइक 2-3 साल पहले से। तब तक आई यूज्ड टू प्ले गुड, बट मैं कहाँ पे शो नहीं करता था अपना ज़्यादा टाइम। लाइक स्कूल में भी few teachers only know that I play the instrument and all. तो मेजर एंड पर 3 सालों में हुआ है। I have met plenty of people do it. That's all. Nice. So, as you said, the social impact and all, it made you more social and all. Now, I would like to add, like, or ask you, कि just a very impromptu question. अभी लेटेस्टली यू नो AI is very trending and it's booming industry. तो हर जगह पे मतलब ऐसे AI is getting their hands on. How do you think it will impact the music industry overall? And अगर तबला AI की नज़र से देखा जाए तो कैसा प्ले होगा या फिर कुछ क्या what do you think? AI बेसिकली बहुत बढ़िया चीज़ है क्योंकि हमारा काम यू थिंक एज अ प्रोड्यूसर आपका काम बहुत ज़्यादा राइट कर देती है कि यू डोंट हैव टू फिगर मेनी मच आइडियाज, बट वहाँ पे कहीं पे ये भी रहता है कि लिमिटेशंस आ जाती है कि इसके बाहर आप काम नहीं कर सकते। एज अ तबला पर्सनली इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो विच रिक्वायर्स अ ह्यूमन टच, कि उसके सिवा नहीं हो सकता बिकॉज प्लेन्स बाय हैंड्स नॉट अ स्टिक और एनीथिंग। वैसे रहते हैं आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग्स रहते हैं वो भी आप देखोगे तो इट डजंट साउंड नेचुरल एट ऑल, तो वो डिफरेंस रहता है। अगर मतलब इंस्ट्रूमेंट को अगर हम लोग को सिखाना होगा एंड इफ AI is teaching to a human any musical instrument for that fact not only तबला तो वो कैसे होगा? मतलब what do you think? Will it be as much as impactful as humans? In terms of classical music, not at all. Because in Marathi, there are 3 terms called Shastra, Shista, and Samskar. These 3 terminologies. It's like the etiquettes, the techniques, and the manners, which can only be taught by a guru, not any AI. Yeah, that is something I completely agree, and that is very like मतलब बहुत speak on point है शास्त्र शिष्ट and संस्कार। Because आप YouTube वीडियो देख के कैसे इंस्ट्रूमेंट सकते हो, प्ले कर सकते हो, पर like how to keep your hand placement, how to your posture should be while playing, how composed your mind should be,
इसीलिए वो भी And I सीखा think जाता है मतलब the discipline in the Yes. Riyaz itself is taught how by to be a personality. yeah. And एक मतलब एज एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और मतलब म्यूजिक से रिलेटेड जब आप काम करते हो तो आई थिंक गुरु प्लेज अ वेरी मेजर इम्पैक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. Yep. And now I just like to ask you that अगर तबला फीचर करता है AI तो वो और ह्यूमन के इसमें क्या डिफरेंस होगा मतलब सिर्फ इफ आई एम प्लेइंग एन हारमोनियम और मुझे अकम्पनिश चाहिए and if I'm asking my AI कि just accompany me so and rather human is accompanying so what will be the difference you think? impromptu thinking वो AI नहीं कर पाता कितना भी एडवांस हो जाए AI पर it can't if there are 16-bit cycle you are playing the 8 bits what random thing should I play in the remaining 8 bits it only can be think by a human mind not an AI. That's a very good point. And if you have to tell something, so right now, actually since a Bandish Bandit in the place, बहुत ज़्यादा classical music की तरफ people are now diverting actually. I think previously we did, but the impact was not as much as the things. And right now, too many classical things, series, and everything is coming to it. So इसकी वजह से classical music is overall dance music, everything is quietly taking their heights. What do you think of that two differences? Like, मतलब, what will be, you see कि पहले ये था और अभी ये है situation and how do you think that has been generated and where do you think all the situations will lead? तो पहले ऐसा था कि बीच में म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए कि ओवरऑल बॉलीवुड म्यूजिक इट वाज नॉट प्रॉपर इन वी आर ए जेन ज़ी पर हम लोग ने पहले भी गाने बहुत सुने Yes. हमको पता है कि As a classical music कैसा था पहले टेक्निकली कैसा था कैसे साउंड करता था लाइक लेजेंड्स लाइक AR रहमान अजय वी नो देयर थिंकिंग हाउ दे थिंक even for that matter I think मतलब जो लता मंगेशकर जी and all 70s के जो गाने हैं yeah it was more classical and right now it's more like a fusion or something मतलब सिर्फ राग पकड़ा है और बाकी सारी चीजें is like so this comes to a very nice question right now the Bollywood music has it has evolved since a time 60s हो गए 70s हो गया. So how do you think that music has taken a turn? I would like to listen from your point of view the journey of Bollywood music. लाइक फर्स्टली ऐसा था कि ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं था कि वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेयर्ड होते थे पहले पर एक कॉम्पैक्ट नेचर था सब ऐसा कि नॉट टू मच एक्सप्लोर लाइक एक ही इंस्ट्रूमेंट को 10 प्रकार से कैसे आप डिस्प्ले कर सकते हो ये इतना नहीं हो पाता था पहले लाइक अभी ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी बहुत सारी आ गई लाइक यू डोंट नीड एवरीथिंग टू बी अ इंस्ट्रूमेंट यू कैन प्रोग्राम थ्रू कीबोर्ड पे सॉफ्टवेयर बहुत मेजर इम्पैक्ट Yeah. And I think sound engineering is also playing a lot of impact nowadays because I have seen a lot of people who don't know how to play an instrument but they are very good sound engineers. They are producing different kinds of music and everything. So how do you think मतलब sound engineering part has made the impact on music overall? लाइक टेक्निकली बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है पहले ऐसा था लाइक परफॉर्मेंस करते टाइम भी इतना नहीं समझ में आता था कि हम लोग को स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि मुझे सामने कैसा साउंड आ रहा है वो टेक्निकल नहीं समझता आज के टाइम में मेरे को बहुत अच्छे से समझ मेरे को बेस हाई चाहिए या फिर लोस चाहिए ज़्यादा Yeah. And I think you can adjust it while doing the sound engineering. So that is, I think, the you positive. can know which is everything there. out of every instrument कि आपको कैसा चाहिए हर एक इंस्ट्रूमेंट कितना बैलेंस होना चाहिए ताकि एक प्रॉपर दिखे वो पूरा melody बने Yes. proper. Yeah, I can understand. Now let's talk about your song that is Murari, which you have been in as an accompanist. So वो एक shooting का experience कैसा था? I think that is your first recording. Yep. So how was that experience? First of all, I thank my big brother Rohit Jaiswal for featuring me over there. And first experience like recording तो बहुत कित पर as a shoot बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था नए लोगों से मिलना नया एक्सपीरियंस करना है नई टीम के साथ काम करना एक पहले हम ऐसे करते शोज के लिए हम लोग फिक्स टीम में पर नए लोगों से मिलना नई टीम का पार्ट बना प्लस इतने बड़े सेट का लाइक वी टुक ऑलमोस्ट 2 days to shoot that song. First one was the setup part and second one was the whole shoot part. But overall इतना बढ़िया था ना लाइक
You think it is an easy, but it's at all easy. It is not at all easy. Yeah. Like we shot a scene for 4 times at least to be that much perfect. Oh, I see that. And what do you think? मतलब वो experience से what are the points you learn? Basically, like the cinematographer, he was her sister, his sister, sorry, and she was like hammering me key or it was hus like I'm very bad at saying acting. When I am too much concentrated on playing, I never laugh. That much, I never smile at all. That's my bad हाँ, habit. मतलब वो नहीं हो रहा था. कि You माइंड are पूरा too much कॉन्सेंट्रेटेड है focused. उससे. तो वो एक बहुत दिया कि एज अ स्टेज परफॉर्मेंस भी अपने आप को कैसे एनहांस करना है कि स्टेज पे भी अच्छा दिया. वो एक बहुत इम्पैक्ट किया. Nice, nice. So, by the way, congratulations for you, Thank you for you. that. Yeah, I'm just being a little late in this video. So now, let's end our video with like, what are your future goals and what will be the one sentence or one thing that you would like our audience to end this podcast with? But our future goals are like conquering many live shows as well as many private classes. My plan is to set up an institute for a particular tabla. Oh, Institute which only teaches tabla and other percussion instruments as well. But that is the later on part. And the message will be like, if you think it is easy, not at all easy. It requires a lot of patience. But आपको अगर इसमें कुछ भी करना है, you have to keep a strong classical base of yours. Like मैंने बहुत सारे सिंगर्स देखे जो स्लाइड म्यूजिक बहुत अच्छा गाते हैं, पर उन्होंने अगर एक भी राग कर लाइक वो द मोस्ट सिंपलेस्ट सॉन्ग yeah. उन्हें बोल दिए तो नहीं हो पाता उनसे करना. It's Yeah. like you have to develop a lot of patience for it. And I think classical music is more about, it's a like, many people say it's a sadhana and it's, Not a- you have to be very patient, you need that overall control. So I think that's a very good point. And with that, we are at our end of podcast. So guys, if you have liked this podcast and if you want to know more about it, please like, share and subscribe my channel, Fun with Vitnas, and we will be here with more such videos and fun content. Bye bye. So, guys, today we are at Social Affair Airoli, and this has been amazing experience. I am trying there all the food stuff. So, their burger, momos, fries, pizzas, and coffee. Everything is super nice. So, if you are someone living nearby, you can visit this cafe. Bye bye.